Yesterday we started ninth chapter and we were studying about the non-tariff trade barriers and new protectionism. We saw that one of the most important non-tariff trade barrier is quota, and quota is a direct quantitative restriction on the amount of a commodity allowed to be imported or exported. We studied the effects of an import quota and we concluded that effect of an import quotas are resembling to that of import tariff, but there were also some differences in the impact of import quota on the consumer and producer surplus and overall welfare of the nation. There are some other non-tariff trade barriers which are also important. Trade barriers other than import tariff and import quotas are included voluntary export restraints, technical, administrative, and other regulation. Trade restrictions also result from the existence of international cartels and from the dumping and export subsidies. These all are the non-tariff trade barriers. And sometimes these are also called the new protectionism. We will see them one by one. First of all, there are the voluntary export restraints. One of the most important of the non-tariff trade barriers are NTBs, which are voluntary export restraints. Voluntary means कि मर्जी से आप अपनी exports को restrict कर दें, तो इसे कहेंगे voluntary export restraint. But these refer to the case where an importing country induce an other nation to reduce its exports of a commodity voluntarily under the threat. एक साइड पे क्या है कि voluntarily को अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि असल में threat किया जाता है under the threat of higher all around trade restrictions when these exports threaten an entire domestic industry. कि इसमें आप ये यूएसए या दूसरे इस तरह के पावरफुल कंट्रीज की तरफ से वो अपनी किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है, जिनकी एक्सपोर्ट्स उनके कंट्री में आ रहे होते हैं, उनको थ्रेट करते हैं कि आप अपने तौर पे खुद ही अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री में भेजना कम कर दें, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो आपकी भेजी हुई गुड्स से या आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, उनसे कम्पीट कर सकें. Voluntary export restraints have been negotiated since the 1950s by the United States, the European Union, and other industrial nations to curtail exports of textile, steel, electronic products, automobiles, and other products from Japan, Korea, and other nations. These are the mature industries that face the sharp decline in the employment in the industrial countries during the past 3 decades. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें डेवलप कंट्रीज में इस टाइम पीरियड के दौरान जब उन्होंने फील किया कि इनमें उनका एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है, उनकी इंडस्ट्री जो हैं वो फॉरेन इंपोर्ट्स के साथ compete नहीं कर पा रही, तो उन्होंने एक्सपोर्टर कंट्री जैसे जापान है, कोरिया है या दूसरे कंट्रीज जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ये फोर्स किया कि वो खुद ही अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको लिमिट करें. उसके लिए कोटा रखा, लेकिन वो कोटा एक्सपोर्टिंग कंट्री ने खुद ही अप्लाई करना था, ना कि इम्पोर्टिंग कंट्री ने वो कोटा दिया. इसका पर्पज क्या था इस तरह करने का? These voluntary export restraints have allowed the United States and other industrial nations making use of them to save at least the appearance of continued support for the principle of the free trade. क्योंकि ये सारे कंट्री जो कि चाहते थे कि उनके कंट्री में इन दूसरे कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स ना आए या लिमिटेड आए, ये वैसे किस चीज़ को मतलब वो करते हैं फॉलो, या किस चीज़ के ये मतलब प्रीच करते हैं कि फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर. तो अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं फ्री ट्रेड बेटर है और दूसरी तरफ आप अपनी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो ये ज़रा दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाती हैं. तो इसलिए ये कि वी आर स्टिल इन द फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, उन्होंने खुद उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने उन कंट्रीज को जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उन्हें ये फोर्स किया कि खुद ही अपनी एक्सपोर्ट्स कम करते हैं. द यूरोगुए राउंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनी जिसमें required the phasing out of all voluntary export restraint by the end of 1999 and prohibition of the imposition of new VER. अगर ये कामयाबी से आप voluntary export restraint जो सी इम्पोज कर सकते हैं, तो उनके सारे के सारे वही इफेक्ट होंगे जो इम्पोर्ट कोटा के हैं और जो टैरिफ के हैं. इसमें एग्जांपल दी हुई है voluntary export restraints की. For example, on Japanese automobile exports to the United States 1981 में यूएसए ने जापान की जो गाड़ियां या ऑटोमोबाइल्स थी उन पे रिस्ट्रिक्शन लगवाई, मतलब जापान से ये कहा कि खुद ही अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें.
The United Nations also negotiated voluntary export restraint with the major steel exporting countries. So voluntary export restraints were less effective in limiting imports than import quotas. Import quota चूंकि आप खुद लगाते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं सख्ती के साथ, लेकिन जो voluntary export restraint है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री ने उनको मैनेज करना होता है। तो चूंकि उनका पर्पस तो नहीं होता एक्सपोर्टिंग कंट्री का, वो खुद ही अपनी एक्सपोर्ट काम करें, तो जब उनसे आप ये काम उनकी मर्जी के बगैर करवाते हैं, तो अगर आप कोटा लिमिटेड करते हैं तो उस दौरान ये पॉसिबिलिटी है, जैसा कि जापान ने किया कि उन्होंने उस कोटा में हाई क्वालिटी की अच्छी कार्स अच्छी प्राइस के साथ एक्सपोर्ट करनी शुरू की कि कम से कम उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम ना हो। और उन्होंने जो कार्स थी उनकी क्वालिटी, ऑटोमोबाइल्स की क्वालिटी जो सी वो बहुत अपग्रेड कर दी। दिस प्रोडक्ट अपग्रेडिंग वाज क्लियरली एविडेंट इन द केस ऑफ Japanese voluntary restraint on the automobile export to the USA. Furthermore, as a rule, only major supplier countries were involved. कि जब आप export restraint इस तरह की countries को force करते हैं तो उसमें सिर्फ ज़रा आप उन countries को include करते हैं जिन countries से आपकी ज़्यादातर imports आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत से दूसरे countries जो हैं वो नहीं शामिल होते हैं इन negotiation में। तो जब वो जगह या वो import quota जो उनसे आप जो imports कर रहे थे आपने उन्हें restrict किया है, तो दूसरे कंट्री में भी कि उस गैप को फिल कर दें और आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो फिर भी compete ना कर पाए। तो ये थी वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। इसके अलावा जो है दीज आर द टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल ट्रेड इज आल्सो हैम्पर्ड बाय द न्यूमरस टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशन। दीज इंक्लूड सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो और किन चीज़ों से श्रिंक होता है। इनमें एक तो सेफ्टी रेगुलेशन है, जो डेवलप कंट्रीज जो से उन्होंने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए रखे होते हैं कि जब तक ये लेवल फुलफिल नहीं करते वो सेफ्टी रेगुलेशन का, तब तक आप उन चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हेल्थ रेगुलेशन, मीन फॉर द हाइजीनिक प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ द इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज में क्योंकि अगर इवन जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक भी है तो हमारे पैकेजिंग स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर उसके लिए एक हायर स्टैंडर्ड जो सा वो डेवलप कंट्रीज की तरफ से फिक्स कर दिया जाए तो बहुत से कंट्रीज जो से हैं उनकी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो लिमिटेड हो जाती है। देन लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स शोइंग ओरिजिन एंड कंटेंट। अब ये जितने भी हैं मतलब लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है या हेल्थ रेगुलेशन है, दीज इंक्लूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं। तो ये सब वैसे तो इनका असल पर्पस भी है, तो ये अपना असल पर्पस तो फुलफिल करते ही हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी जो रेगुलेशंस हैं वो ट्रेड के वॉल्यूम को श्रिंक करने के लिए भी सम टाइम यूज होती हैं। कंट्रीज पर्पस इस तरह से यूज करते हैं कि वो किसी चीज़ की इम्पोर्ट्स लिमिटेड करना चाहते हैं तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। Other trade restrictions have resulted from law requiring government to buy from the domestic supplier। मतलब ये भी एक तरह की ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है कि आप गवर्नमेंट ने जितनी भी परचेज करनी है आप उसे फोर्स करें कि गवर्नमेंट सिर्फ डोमेस्टिक सप्लायर से चीज़ें खरीदेगी, इस तरह भी आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। बॉर्डर टैक्स है और इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्रीमेंट्स एंड द मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स आल्सो रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड वॉल्यूम, which we will study in the 18th and 11th chapter. There is another form which is international cartels. An international cartel क्या होता है? Is an organization of the supplier of a commodity located in different nations। कि एक किसी भी कम्युनिटी के सप्लाई करने वाले अगर डिफरेंट कंट्रीज में रहते हों और वो आपस में मिलके एक कार्टल बना लें जो कि मोनोपोली की तरह काम करे, तो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कार्टल एंड they agree to restrict output and export of the commodity with the aim of maximizing or increasing the total profit of the organization. Although domestic cartels are illegal in the USA and many European countries, but the power of international cartel cannot easily be countered because they do not fall under the judiciary of any one nation। कि किसी एक कंट्री में अगर कार्टल बैन भी है तो चूंकि इंटरनेशनल कार्टल किसी एक कंट्री के लॉ के अंडर नहीं आता, इसलिए आप उसे इजीली हैंडल नहीं कर सकते। प्रेजेंट डे कार्टल में जो सबसे मतलब आप जानते हैं ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री विच बाय रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट सक्सीडेड इन क्वाड्रपलिंग द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बिटवीन 1973 एंड 1974। एक और एग्जांपल इंटरनेशनल कार्टल की है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। An international cartel is more likely to be successful if there are only a few international suppliers of an essential commodity for which there are no close substitute। के इंटरनेशनल जो कार्टेल है वो सिर्फ तब ज़्यादा कामयाब हो सकता है कि उसके जो सप्लायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो
और दूसरा ये कि जो कमोडिटी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, क्योंकि इन केस देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, आपके जो इम्पोर्टर हैं वो आपकी चीज को छोड़ के दूसरे कंट्री से वो चीज इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। And then there is dumping. Trade barrier may also result from the dumping. Dumping is the export of a commodity at below cost or at least the sale of a commodity at a lower price abroad than domestically. डंपिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे कंट्री पे जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो आपकी अपनी कास्ट से भी कम है, या कम अज कम आप जो प्राइस डोमेस्टिकली ले रहे हैं उससे कम प्राइस आप दूसरे कंट्री से लेते हैं। इस सिचुएशन में मतलब डंपिंग डिफरेंट टाइप्स की डंपिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या है कि इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द कंटिन्यूस टेंडेंसी of a domestic monopolist to maximize total profit by selling the commodity at higher price in the domestic market and then internationally। कि persistent डंपिंग ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर मुसलसल ये इस तरह से करे कि एक गुड प्रोड्यूस करके उसे डोमेस्टिकली कम प्राइस पे सेल करे, हाई प्राइस पे सेल करे और इंटरनेशनल लेवल पे वो उसको कम प्राइस पे सेल करे। प्रीडेटेड डंपिंग क्या है? It is the temporary sale of a commodity at below cost or at lower price abroad in order to drive foreign producer out of business, after which prices are raised to take advantage of the newly acquired monopoly power। कि आप फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक आध दफा इस तरह से करें कि कोई भी गुड जो सी है वो दूसरे कंट्री में बहुत कम प्राइस पे उसको सेल करें और दूसरे कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो उसको कम्पीट नहीं कर पाते और वो उनकी मार्केट खत्म हो जाती है। जब उनकी मार्केट खत्म हो जाती है सेल, तो फिर आप प्राइस इंक्रीज करके उनसे उसी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। स्पोरेडिक डंपिंग इज द occasional sale of a commodity at below cost or at a lower price abroad than domestically in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without having to reduce domestic price। ये किसी वजह से अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन ज्यादा है और आप उसमें डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए सेल नहीं करना चाहते कि आप अपनी डोमेस्टिक प्राइस कम नहीं करना चाहते, तो आप उसे किसी भी दूसरे कंट्री में बहुत कम प्राइस पे उसको सेल कर देते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं डंपिंग के। लेकिन इसका प्रॉब्लम अब ये है कि जब आप इतनी कम प्राइस पे दूसरे कंट्री में चीज सेल करते हैं तो उस कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको कम्पीट नहीं कर पाती। तो इस वजह से अगर आप प्रूव कर पाएंगे कि कोई कंट्री अपनी गुड्स आपके कंट्री में डंप कर रहा है यानी कि डंपिंग कर रहा है, तो फिर उसके लिए ये जस्टिफाइड है WTO की तरफ से भी कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड। तो इस सिचुएशन में जब ये जस्टिफाइड है तो फिर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं ज़ाहिर है ट्रेड का वॉल्यूम श्रिंक होता है और ये प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है कि क्या वाकई डंपिंग थी। स्पेशली ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है इनकी परमिशन है इन द केस ऑफ प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग मीन ये कि आप पर्पसली कम प्राइस पे चीज़ सेल करते हैं ताकि वहाँ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मार्केट छोड़ जाए। जब वो छोड़ चुकते हैं तो आप उस सारी मार्केट को कब्जा कर लेते हैं। एंड last is the export subsidies. Export subsidies are the direct payment to the nation exporter or the potential exporters, or they are provided with the interest loan at low cost, at low interest to foreign buyers to stimulate the nation exports। कि कोई भी कंट्री अपनी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं उनको इंक्रीज करने के लिए और फॉरेन कंट्री में जाके ज्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए आप डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं अपने एक्सपोर्टर्स को। और इसके अलावा जो फॉरेन बायर है जिन्होंने आपकी एक्सपोर्ट्स खरीदनी है आप उनको लो इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं टू स्टिमुलेट द नेशन एक्सपोर्ट्स। एज सच एक्सपोर्ट सब्सिडीज कैन बी रिगार्डेड एज द फॉर्म ऑफ डंपिंग। ज़ाहिर है कि आप अगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं तो कम प्राइस पे चीज़ें सेल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ये भी एक तरह की डंपिंग है। Although export subsidies are illegal by the international agreement, many nations provide them in disguised and not so disguised form। इंटरनेशनल लेवल पे लीगल नहीं है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, लेकिन फिर भी बहुत से कंट्रीज जो हैं वो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देते हैं। All major industrial nations give foreign buyers of the nation's exports low interest loan to finance the purchase through agencies such as the United States Export Import Bank।
कि फॉरेन इज, और दूसरा तरीका ये क्या फॉरेन जो बायर है उनको इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपकी चीज़ें जो हैं उनको खरीद सकें. So these were the different non-tariff trade barrier excluding quota. Quota we studied about that yesterday. और जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं इनको इफेक्ट खत्म करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ऑफसेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट. और जब आप ज़ाहिर है कि ड्यूटीज लगाते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम श्रिंक करता है. हम ये पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट और इस तरह के बैरियर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. और उसमें हमने क्या चीज़ें देखी हैं. हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, सेकंड technical, administrative and other regulations, third international cartel, fourth dumping, and fifth is export subsidies. You may ask any question about this topic. Tomorrow we will start the political economy of protectionism. Non-tariff trade barriers and the new protectionism. In this we are studying about voluntary export restraints that an importing country induce another nation to reduce its exports voluntarily under threat of higher trade restrictions. Sometimes called orderly marketing arrangements. Voluntary export restraints allow industrial nations to appear to export the principle of the free trade. Less effective in limiting imports than import quota because exporters tend to fill the quota with high quality and higher prices goods over time. Example of Japan was given. Other non-tariff trade barriers are technical, administrative, and other regulations. For example, health and safety regulation may serve as barrier to international trade by raising the cost of imported products. Government purchasing restriction by the biased against foreign goods. The Buy American Act of 1933 that government can purchase only from the domestic supplier. Rebates for indirect taxes may be given to the exporters and imposed on importers of a commodity. Then there are the international cartels, organization of the supplier from different nations that agree to restrict the output and export of a commodity with the aim of maximizing or increasing total profit is called a cartel. For example, OPEC, the organization of petroleum exporting countries. They quadrupled their price of crude oil between 1973 and 1974 by restricting their production. And dumping, it is the export of a commodity at below cost or the sale of the commodity at a lower price abroad than domestically. There are the three types of international dumping. First is persistent dumping, is the continuous tendency of a domestic monopolist to maximize total profit by selling the commodity at higher price in the domestic market and at lower price in the international market. Predatory dumping is the temporary sale of a commodity at below cost or a lower price abroad to drive the foreign producer out of the business and then getting monopoly in the market. Sporadic dumping is the occasional sale of a commodity at below cost or lower price abroad to unload the surplus of the commodity without reducing the domestic prices. And export subsidies are the granting of the tax relief to the exporter or subsidized loan to the foreign buyers to stimulate a nation exports. It can be regarded as a form of dumping. Export subsidies are illegal by international agreement but often used in disguised form. Example is Export-Import Bank, US government agency that extends subsidized loan to the foreigners to finance the United States exports. Any question?